Yes, sometimes. like judging other, and Mhm. like about judging. My thoughts are now so much like taken care of. Earlier we used to intentionally or unintentionally, I used to judge people. Mhm. Okay, so now I'm so much aware that I just don't, I'm like, I don't judge now anyone. And I try my utmost that sometimes no, unintentionally also I don't do the judging anyone for anything, for any kind of behavior. Mhm. Yes, yes, very, very important. Same things happen to me also. Like when some guru is speaking about, or that realization doesn't happen at that time, but later in the life, somewhere I come to know, like, yeah, this was so. I mean, this was so pivotal point for my life. I mean, pivotal to understand for my own life. So these kind of things happen all the time, and we are always with each other. So of course, it's it's amazing, like how we hold each other's hand in this whole journey. Good afternoon, Rekha ji. Good afternoon, Mummy. Mhm. Good morning. Good morning. In that session, one lady discussed about the same problem which I discussed with you. Do you remember, in uh, sharing in sharing. I mean, which one? There were uh, three, four sharings. about her Jethani one? Okay, yes, I Like she used remember. to blame all the time for her. I hope you got it. Yes, yes, I got it. And that's how she also. Exactly the Did you same listen thing to her? happened to How she me. solved her problem? And I'm glad I discussed with you one and one that thing, rather than keeping it to me. No, Yes, yes. Very important sometimes to get to, so it was go to sounding truth. very negative. Mhm. Yeah, but then you handled that issue really very nicely, and it was a very eye-opening for me. It was completely U-turn, complete U-turn. It was for me. Yes, actually, let me tell you that that thing has happened with you for some reason at that time. Definitely reason. So because you are in journey now, you are guided. You are divinely guided. So whatever now will happen in your life, it will be there to teach something. I mean, of course, in our whole life, there is something to teach us. But what happens most of the time, we are not open to that. We are not in a receiving mode. But now, because you are in this journey, you are in this gratitude practice. Now what happens is you're open to learn, you're open to new experiences, and that experience was there completely just to teach you. That's it. And now Yes. that will never happen again, at Yeah, least true, with very true. me, because that was there to teach you, and it taught you whatever it wanted to, and now it's gone. So it's remarkable how things happen when you are on this journey. Things will unfold like nothing. I mean, no one else can do that. Seriously. Yes, and that affirmation which you start in first session, you not this second time you are taking. First time you made us right, no. I am open and receptive. That time I was not able to feel it, but now I am actually feeling it. Yes. Because first, Affirmation was done last time, but feeling is coming now for that thing. that is why writing, feeling comes later on. So that is why it's very important to do the affirmation. Sometimes you don't feel initially, and you will feel that how
actually happening in your life. Now you're open and receptive to so many things. And because you are open and receptive, so many good things also come to you. That is also the thing. So yes. Anybody else? Thank you so much, Alifia, for everything so far. And I'm sure there is much more to learn from you. And God bless you. Thank you so much. Thank you so much for taking it on for yourself and putting so many efforts in everyday life. It's really remarkable how you came from where you were and now you are. So like, I'm really, really so proud of you. So proud of you, Amina. Seriously. Okay, so let's start our peak state programming. I'll bring my phone. So there is a peak, there is a Rajan sir's, there is one session of Rajan sir, I think, on Sunday. So if any of you wants to join, you can join and attend that session. You will learn a lot. So if you want to join, it's about, I think it's also on 3 p.m. and Lata ma'am has already shared in our group. Do we have to just click on that link? I have clicked on that link and I got joined in one group. Is that all I have to do, or do I have to do some message on the given number for registration? No, you don't have to. If you Okay, join the group, you are done. Yeah. fine. Okay. Yes, yes. Thank you so much. Okay, so let's do our peak state programming. And developing a winning attitude. Do practice this for next 21 days and repeat it as often as possible. This is peak state programming. How to change your mental state instantly. Stand in a running position with the right leg in the હેલો and left leg અલેફિયા in a આ running. પુષ્પાન અને એ લોકો ફર્સ્ટ ટાઈમ આવેલા છે ને તો પ્રોગ્રામિંગ માં કઈ રીતના પેલી એક્સરસાઇઝ કરવાનું હોય જરાક એક્સપ્લેન કરી દે. हाँ, सॉरी आई फॉरगॉट. सो एक्चुअली क्या करते हैं, पीक स्टेट प्रोग्रामिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि इसमें क्या होता है, हम अपने ब्रेन को ऐसे ही लाइक फेक रनिंग करवा रहे हैं. ब्रेन को ऐसा फील करवा रहे हैं कि हम रन कर रहे हैं, वी आर रनिंग अ रेस एंड इन दैट वी आर विनिंग एक्चुअली. तो ब्रेन को क्या लगता है कि एकदम से ब्रेन कोई कोई हॉर्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है और तुरंत ही हमें गामा फ्रीक्वेंसी, जो हमारी हाईएस्ट अलर्टनेस की फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें हमें लेके जाता है. इसलिए हम ये पीक स्टेट प्रोग्रामिंग करते हैं कि जो अभी हम सीखने वाले हैं मैजिक बुक में या पावर बुक में, जो भी हम सीखने वाले हैं, हमारे बिल्कुल हम अलर्ट हो जाते हैं वो सीखने के लिए. और जो भी हम लर्न करते हैं उसमें वो तुरंत ही एकदम सबकॉन्शियस में इम्प्रेग्नेट हो जाता है. तो इसीलिए हम पीक स्टेट प्रोग्रामिंग करते हैं कि इधर उधर हमारा ध्यान ना जाए और हम कंप्लीटली फोकस्ड रहे, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं. तो इसीलिए हम करते हैं. इसमें क्या करना है आपको, ये जो राइट लेग है, फर्स्ट टाइम में राइट लेग आगे करके पूरा बेंड होना है. देखो मैं ऐसे खड़ी हूँ अभी ये पूरा बेंड हो रही हूँ यहाँ पे, और बेंड होके जैसे नीज को भी थोड़ा सा बेंड करना है. पीछे का जो लेग है उसको थोड़ा रेस करना है. तो पूरी रनिंग पोजीशन लेनी है इन शॉर्ट. और रनिंग पोजीशन लेके अभी हम ऐसा एक्ट करेंगे कि जैसे हम रन कर रहे हैं. हालांकि हम रन नहीं कर रहे, पर हमें अपने माइंड को ऐसा फील करवा रहे हैं. ओके, तो जैसे ये म्यूजिक होता है तो हम ये रनिंग चालू करते हैं. ओके, सो पुष्पा आंटी, डिड यू गेट इट? पता चल गया आपको कि क्या करना है एग्जैक्टली? Okay, so I assume
હજુ so, એમને નહીં પેલા બધા ફંક્શન કરવાનું યાદ નથી આવતું કરવાનું કઈ રીતના. huh? આમ એમને અનમ્યુટ કરીને કહેવાની નથી આઈડિયા આવી રહી. હા વાંધો નહીં. ચલો કઈ વાંધો. So okay, let's start. That you are running an Olympic race and you are winning. Standing Olympic in the race. same position, just move your hands faster and faster. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run faster, Yes, fast. Yes, come on, faster. Yes, fast. Come on, faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, faster. Yes. Keep running. Fast. Yes, come on, fast. Still faster. Yes, faster. Come on, go fast. Yes, fast. And now stop. Thank you. Yes, very nice. Yes, Very I nice. am the winner. And you say to yourself, I am the winner. Yes, we I'm all the are the winner. winners. I am the winner. Yes, thank you. So now repeat the same practice with your left leg ahead. So and now right you raise your leg, left leg, the ankle raised put your behind. left leg We do in the the same thing front again. and the Okay, right so behind. let's start. And 3, start. 2, 1, go. Come on, run. Come on, run faster. Faster. Yes, faster. Still faster. Yes. Come on. Yes, come on, fast. Yes, come on, fast. Come on. Yes. Run faster. Come on. Still faster. Yes. Come on, faster. Yes. Come on, fast. You can do it. Come on. Run faster. Still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster. Yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful. Just stop. Thank you. Yes, And now, I am the winner. say to yourself, yes, I am the winner. Yes, we all Yes, are the I am the winners. winner. I am the winner. And now we say to ourselves, I can. Okay, repeat. I can. I I will, I must. must. I can, I will, I must. Thank you so much. Thank you, Rajan sir. Okay, so who would like to read today? Amina, would you love to read today? Yes, sir, I will. Okay. All right, let's go. So today's chapter is again very magical chapter. You all is going to love it. Okay, can you all see the book? Oh, Yes. The pic is now it is complete, right? okay. There is an alarm clock, and there is a darkness in the room, and the magical sparkles are coming out of the clock, alarm clock. There are some books also. I think it is bedside. Yes, it is bedside, and see, it's 7:30 a.m. in the morning, I'm guessing. So Okay. this is about the magical day. We learned about magical morning on our day 12. And now we are learning how to, like yesterday, we all, wrote our dreams, right? So whatever dreams we wrote, now we are very much ready to chase them. I mean, not actually chase the dreams, but making our dreams come closer to us. And how we're going to do it? Like we are going to do all these different practices. So today's practice is about how you can achieve so many things in your day by using a gratitude's magical power. And I use it all the time. Sometimes I forget, but most of the time, whenever I do this, Amina, your question was like, sometimes we are not able to take the action. We think, overthink.
So this practice is going to help you with that so Great. much into because it happens to me all the time also. But whenever I do this practice, I'm able to finish so many of my tasks, if not all, whatever I write. So yeah, let's now go further and start reading. Intentions compressed into words unfold magical power. Said by Deepak Chopra, B. 1946. He was a medical doctor and writer. So he's still here. Dr. Deepak Chopra is amazing personality. He's very spiritual. He wrote so many books. So 21 Days Abundance Program is also written by him. And he wrote so many different books. And I read at least 2 or 3 of his books. And they're amazing. He also he also wrote on weight loss, like how your mentality affect your weight. So there was one book I just bought it. Brought it from the library one time and I read it, and it was really good. And then he also has some 7 spiritual laws of success, as well as 7 spiritual laws for parenting. So those are the also books that he wrote, and he's a remarkable writer. So what he says is intentions compressed into words and fold magical power. अभी क्या होता है कि आप अपने मन में सोचते रहते हो कि हाँ मुझे ये करना है, ये है. अगर कभी आप किसी भी चीज के लिए अपना इंटेंशन बना लेते हो और उसको लिख देते हो, अगर सबसे ज्यादा अच्छा है लिख देते हो, तो उसके अंदर ऑलरेडी एक मैजिकल पावर आ जाता है. इसीलिए जो भी लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे गेट थिंग्स डन, बिकॉज क्या था, उनका जो भी इंटेंशन था आज के दिन के लिए उन्होंने लिख दिया. तो जिनकी भी ये प्रैक्टिस होती है, ये यूएस में तो ये बहुत ही प्रिवेलेंट प्रैक्टिस है. सबको मैं देखती हूँ ऐसे, वो हमेशा ही नोट्स अपने पास रखते हैं और पूरा लिख देते कि आज के दिन में उनको क्या क्या करना है एग्जैक्टली. तो एक तो क्या होता है कि अपने माइंड को भी हम फ्री कर देते हैं. अभी मैं सोचती रहूं कि हाँ मुझे इसमें आज के दिन में ये करना है, खाना बनाना है, फिर मुझे बच्चों को अगर कहीं पे छोड़ना है तो वो है, अगर मुझे जॉब पे आज जाना है तो जैसे वो है. तो इतनी सारी चीजें पूरे दिन में होती है कि हम ऐसे सोचते हैं तो वो अंदर चलती ही रहती है, घूमती रहती है माइंड के अंदर. पर जैसे ही हमने लिख दिया तो वो हमारा माइंड का भी बहुत सारा काम मतलब जो स्ट्रेस होता है माइंड के अंदर वो रिलीज हो जाता है, क्योंकि हमने कंप्रेस कर दिया उसको लिख के. तो ये लिखने वाली प्रैक्टिस बहुत ही काम की है, सभी चीजों में वो काम की है. जैसे हम कोई चीज है जो हमें बहुत बॉदर कर रही है, अगर वो भी हम लिख देते तो हमारा बहुत सारा अंदर से जंक निकल जाता है, समझ लो माइंड में से एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आने लगता है. तो इसी तरह अगर आपका इंटेंशन आप दिन में सुबह ही कर दो कि आज का मेरा ये इंटेंशन है, मुझे ये काम करने हैं, और लिख दो, तो आधा काम तो वहीं पे हो जाता है सीरियसली. ओके, सो लेट्स रीड. To see and experience the most magical day of your life, you can be grateful for your whole day before you live it. To have a magical day, you simply think through your plans for the day and say the magical words thank you for each one going well before you have lived it. It's the easiest thing to do. It only takes a few minutes, but the difference it can make in your day is incredible. Being grateful for your day beforehand creates a magical day through the law of attraction. When you give thanks for the experience in your day going well, you must receive back experiences going well. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक टू डू लिस्ट तो बनाएंगे ही, पर उसको भी पहले से ही ડેસ્ક પર બુક મૂકને, ડેસ્ક પર બુક નથી આવતી. 6 બુક તો છે ત્યાં. નથી આવતું, અમારે નથી રીડ. Okay, the network issue is there. Yeah, it might be a network issue because Amina could read it, so
I assume everybody has a book on in front of them. Yeah. So इसमें क्या होता है कि आप जब ग्रेटफुल होते हो, यानी क्या होता है कि आप टू डू लिस्ट बना रहे हो, पर उसके लिए भी आपने पूरा अपना जो सरेंडर कर दिया सुप्रीम पावर को कि भाई ये मेरा लिस्ट है और ये आज मेरे काम है जो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं. So before even going to do it, before you have lived it, you are already thanking the supreme power for all those things going well in your day. अभी आप क्या कर रहे हो कि एक तो जैसे कल हमने ड्रीम लिस्ट बनाया था तो उसमें हम इमेजिन कर रहे थे कि अच्छा ये हो गया है, मैं किसी से बात करके उनको बोल रही हूँ, या मैं उसके बाद क्या होगा, मैं क्या करूंगी अगर मेरी ये ड्रीम फिनिश हो गई तो मैं क्या करूंगी, ये भी मैं अभी से सोच के खुश होके मैं थैंक यू कर रही हूँ. तो सेम वे में अभी ये पूरे जो दिन का जो काम है हमारा, क्योंकि हमारा ये छोटे छोटे स्टेप से ही तो हम आगे बढ़ेंगे ना अपने ड्रीम्स की तरफ. तो ये एक ऐसा स्टेप है जो बहुत जरूरी है कि दिन के लिए हम पूरे दिन के लिए जो भी काम करने वाले उसको लिख देते हैं, उसको पहले से ही थैंक यू बोलते हैं कि ये काम हो गए हैं और अच्छी तरह से हो गए, उसको पहले से इमेजिन करके उसके लिए ऑलरेडी थैंक्स बोल देते हैं. इससे क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगेन काम करेगा और जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा पूरे दिन में एकदम ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी आपने उसके लिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर ली है दिन में ही, इन द बिगिनिंग ऑफ योर डे. तो इसीलिए आपको सेम टाइप के एक्सपीरियंसेस वापस मिलेंगे. ओके, सो लेट्स रीड फर्दर. If you don't believe you have the power to affect the circumstances of your day so dramatically, think about a time when you woke up grumpy and in a bad mood. You went off into your day, and one thing after another went wrong, until by the end of the day you were exclaiming that you had a heck of a bad day, as though a bad day happened by accident. Well, the only reason you had a bad day was because you took your bad mood from the, and it was your bad mood that was the cause of one thing after another going wrong. हाँ, तो अभी आप सब भी ये चीज को एक नोटिस कर सकते हैं अपने खुद के लिए. क्या होता है कि अगर कभी हम ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम रॉक प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप सब भी शेयर कर सकते हो क्योंकि आप उठते हो तो बहुत ही अच्छे मूड में, बहुत ही खुशी वाले मूड में उठते हो बिकॉज ऑफ द रॉक प्रैक्टिस. तो सेम वे अगर आप अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज आप लेके सो गए, कोई चीज आपको बॉदर करती थी और वो वही सोचते सोचते आप सो गए रात में, तो क्या होता है उसकी वजह से आप एकदम ही खराब मूड में उठते हो. कुछ ना कुछ बैड मूड में अगर उठे, सुबह सुबह ग्रम्पी मूड में उठे, कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स अपने माइंड में कर ली, तो फिर तो गया, पूरा दिन वैसे ही जाएगा आपका. एक के बाद ऐसी ऐसी चीजें होती जाएगी जिसके बाद आपको लगेगा कि ओह माय गॉड, आई हैड रियली अ बैड डे, वेरी बैड डे. तो ये ऐसा होता है, आप अपने पास्ट में जाके भी कहीं पे आप ढूंढ के देख सकते हो कि हाँ, मेरे साथ भी एग्जैक्टली ऐसा कई बार होता था कि मैं सुबह सुबह में मूड में, मतलब खराब मूड में उठी, कुछ किसी स्पाउस के साथ या कुछ कैसे भी किसके साथ झगड़ा हो गया, एक के बाद पूरा दिन खराब होता गया. तो अभी क्या होता है, एक तो हमने ये हैप्पी मॉर्निंग सीखा कि हम कैसे मॉर्निंग में ग्रेटिट्यूड के साथ उठेंगे, कैसे 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 हम हमारे पूरे मॉर्निंग में ग्रेटिट्यूड करते जाएंगे एक के बाद एक चीजों के लिए. तो ऑलरेडी हम अपनी मॉर्निंग तो अच्छी सेट कर रहे हैं, अभी हम हमारा दिन भी अच्छा सेट करेंगे बाय ऑलरेडी मेकिंग एन इंटेंशन फॉर द डे. एक तो हमने इंटेंशन बना लिया, उसके बाद पूरी चीजें लिख दी और सभी चीजों को गॉड के ऊपर, सुप्रीम पावर के ऊपर छोड़ दिया, थैंक यू बोल के कि थैंक यू गॉड फॉर दिस. ओके, सो लेट्स रीड फर्दर. Even waking up in a bad mood doesn't happen by accident because it means that you went
to sleep thinking negatively about something, perhaps without realizing it. It's the very reason why you are doing the magic rock practice last night at night, to ensure that you go to sleep thinking good thoughts. Okay, good thoughts. The magic rock practice at night, combined with count your blessings every morning, sets your good mood at night and in the morning. And they guarantee that you are feeling good before you go off into your day. या तो ये 2 प्रैक्टिसेस अभी आपको समझ में आएगा कि कितनी जरूरी है, रॉक प्रैक्टिस करना कितना जरूरी है और सुबह उठ के तुरंत ग्रेटिट्यूड करना कितना जरूरी है। अगर आप अपने दिन में अगर ग्रेटिट्यूड सुबह नहीं भी लिख पाते हो तो एटलीस्ट आप ग्रेटिट्यूड वाला मॉर्निंग पूरा सेट कर लो कि उठने के साथ तुरंत ही आप बहुत सी चीजों के लिए ऑलरेडी थैंक यू बोल चुके हो। मैं तो यही बोलूंगी कि इनिशियली तो प्लीज आप उठ के तुरंत इवन बाथरूम में जाए बिना तुरंत ही लिखना चालू कर दो कि हाँ थैंक यू गॉड फॉर दिस दिस दिस। पूरा अपना लिस्ट बना लो 10 चीजों का, वो ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, हार्डली 15-20 मिनट लगते हैं। मैं बहुत ही डिटेल में पहले लिखती थी तो मुझे टाइम लगता था, पर ये अपने ऊपर ही है, हम अपने आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं। तो इसीलिए सुबह उठ के अगर आप लिखते हो तो आपका पूरा दिन का एक टोन सेट हो जाता है मॉर्निंग में ही। और जो जैसे आप इतने अच्छे गुड मूड में होते हैं, कभी कभी पहले क्या होता है कि अगर हम ग्रम्पी उठते हैं, फिर कुछ स्पाउस ने बोल दिया तो हम और ग्रम्पी मूड में चले जाते हैं, उनके साथ झगड़ा भी करने लग जाते हैं, रिएक्शन भी कर देते हैं। अभी क्या होता है कि हम इतने अच्छे मूड में ही होते हैं तो अगर उन्होंने कुछ बोल भी दिया तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो ये भी एक बहुत ही फर्क पड़ता है कि कैसे आप अपने दिन में सुबह अच्छे मूड में उठते हो और उसके बाद कैसे वो एक कास्केडिंग इफेक्ट होती है आपके दिन में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीजें अच्छी होती जाएगी। तो दैट इज वाई ये 2 प्रैक्टिसेस करनी बहुत जरूरी है। ओके, लेट्स सी फर्दर। To have a magical day, you need to feel good. I don't know of anything other than gratitude that guarantees to put you in good mood almost instantly. Whatever you plan, whatever your plans are for the day today, whether it's traveling, a meeting, work project, lunch, exercise, dropping off, dry cleaning, playing a sport, going to the theater, meeting a friend, yoga, cleaning your house, going to school, or buying groceries. Turn today into a magical day by saying the magical words thank you for each plan going well before you leave it. If you are a person who writes daily list of things you need to do, then you can go through your daily list and be grateful for each one having gone well. Whether you do this magical practice in your mind or on paper, the most important thing is that you feel the result of each plan or activity was the best it could have been. सो यहाँ पे भी फील करना बहुत जरूरी है। रिजल्ट, सभी प्लान आपने लिख दिया, टू डू लिस्ट बना लिया, उसके बाद उसको देख के आपको थैंक यू बोलना है। अगर ये आपकी रोज की एक्टिविटी है कि पहले से ही आप लिस्ट बना लेते हो तो कोई बात नहीं, एक एक के ऊपर जाके आप पहले से ही थैंक यू बोल रहे हो और ऐसा इमेजिन कर रहे हो कि वो बहुत ही अच्छी तरह से हो चुकी है और उसका बेस्ट रिजल्ट भी आ चुका है। ये अपने माइंड में ही आप इमेजिन कर रहे हो, तो ये बहुत ही जरूरी है ये चीज करनी कि आप पहले से ही फील कर रहे हो कि इसका क्या रिजल्ट आने वाला है। तो जो भी एक्टिविटी होगी, अगर मान लो एक्सरसाइज है तो उसका बेस्ट आउटकम क्या होगा आपने पहले से ही फील कर लिया। तो दैट इज वाई जो ये हम लुइस है की भी बुक अभी पढ़ रहे, मतलब मैं कर रही हूँ मिरर वर्क, जो हम सब साथ में नेक्स्ट मंथ वापस करेंगे। एक बात भी ये भी समझ लो कि ये जो चीजें हैं जैसे मिरर वर्क है या फिर 21 डे का अबंडेंस प्रोग्राम है दीपक चोपड़ा का, या मैजिक बुक है, कुछ भी है, हम क्यों इसको बार बार करना पड़ता है? क्योंकि एक बार में हमें समझ भी नहीं आता है कई बार। तो
इसलिए हमें बार बार उसको करना है, so that we can go deeply into that practice. तो जैसे ये मैजिकल प्रैक्टिस भी है, अभी मैजिक की ये सब ग्रेटिट्यूड की भी प्रैक्टिस है, आपको ही खुद को ही फील होगा कि आपने लास्ट मंथ किया था और अभी इस मंथ आप कर रहे हो, इसमें बहुत फर्क है। जैसे जैसे आप रिपीटेडली करते जाते हो, वैसे वैसे आपको ज्यादा समझ में आती है वो चीजें, और ज्यादा आप अपने माइंड को ओपन करके वो चीजें ले सकते हो। इसलिए ये बार 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 करना बहुत जरूरी है। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि लुइस है कि जो ये मिरर वर्क बुक है, उसमें મને इन्होंने પાણી ભરીને આપે છે ને. तो उसमें इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि वो जब बेड में से उठती है तो बेड को तो ग्रेटिट्यूड करती है, पर जब वो अपनी मॉर्निंग में अभी उठ के आती है तब तक तो वो 80-100 लोगों को या सिचुएशन को, कितनी ऐसी चीजों को वो ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड कर चुकी होती है। आई मीन दैट इज रिमार्केबल दैट आई रेड दिस यस्टरडे, कि इतने सारे ग्रेटिट्यूड, ओ माय गॉड, 80-100 लोगों को ग्रेटिट्यूड दे चुकी होती है, या तो चीजों को या जो भी। आई मीन इट्स रियली रियली रिमार्केबल हाउ ऑल these, all of these gurus, masters of their own, things, they teach us. जैसे आइंस्टाइन का भी हमने कितनी बार पढ़ा है कि वो दिन में कितने लोगों को वो थैंक्स बोलते थे। तो ये कोई कोइंसिडेंटल बात नहीं है। एक्चुअली अगर आप यूनिवर्स के साथ हार्मोनी में, कैसे आप हार्मनी में बनोगे? बाय गिविंग थैंक्स। एक हार्मनी आपके और यूनिवर्स के बीच में बिल्ड हो जाती है जब आप थैंक्स करते हो, और वही हार्मनी से चीजें आपकी लाइफ में होने लगती है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। When you use gratitude ahead of time to have a magical day, it wipes out unexpected problems or difficulties before they happen. The more you use this magical practice, the better your day will become. And from the smallest thing to the important things, everything starts going well in your life. The bumpy days smooth out, and instead of frustrating or troublesome things happening in your days start to have a magical flow about them, and things seems to magically go your way with less efforts, no worry, no stress, and far more joy. तो आप जब भी ये प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद फील करोगे कि कितना जॉयफुल था मेरा दिन, पूरा दिन। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही मैजिकल पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड को यूज कर लिया। पहले से ही आपने शुक्राना कर लिया कि मेरा दिन कैसे जाएगा, और जो चीजें, कोई फ्रस्ट्रेटिंग चीजें भी आएगी, तो यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टू हैंडल दोज। और जैसे आपका दिन इतना स्ट्रगलिंग होता था पहले, वो अभी स्मूदन आउट हो जाएगा, एकदम स्मूथ तरीके से वो जाएगा दिन पूरा, एफर्टलेसली। इसके साथ आप ये कंबाइन कर सकते हो, ये वाला एफर्मेशन भी लिख सकते हो ये पूरा टू डू लिस्ट बनाने के बाद। आई फ्लो इनटू माय डे इजीली एंड एफर्टलेसली। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एफर्मेशन है जो आप कर सकते हो ये इसके बाद, टू मैजिकली going things very easily and effortlessly in your day. So that is what we are doing. We are combining so many different things together right now. So जो भी हम कर रहे हैं उसका जो पावर है वो इंक्रीज हो जाता है। इसलिए एफर्मेशंस भी बहुत जरूरी है, और ये मैजिक प्रैक्टिस करनी बहुत बहुत जरूरी है। ग्रेटिट्यूड इज द बिगेस्ट ब्रिज टू लिव योर ड्रीम लाइफ। तो ये आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और पावर बुक की पूरी जो भी है, पावर बुक अबाउट लव है, पर लव के तरफ पहुंचने के भी लिए आपको ग्रेटिट्यूड चाहिए पहले। उसके ऊपर आपका पूरा ग्रिप होना चाहिए। पूरे दिन में आपका एक बीइंग बनना चाहिए कि आप ग्रेटफुल बीइंग ही बन गए हो। हमेशा सभी चीजों को, सभी लोगों को ग्रेटिट्यूड करते ही रहते हो, ऐसा आपका बीइंग बन जाना चाहिए। इसलिए आपको ये प्रैक्टिस बार बार करनी है। ओके, लेट्स रीड फर्दर।
When I first began to use gratitude to have a magical day, I choose to give thanks ahead of time for the events in my day that I didn't enjoy doing very much. One of those things was going to the supermarket. At, at the beginning of the day, I said the magic words, "Thank you for the easy and joyful trip to supermarket." I had no idea how a trip to supermarket could be easy and joyful, but I felt as much gratitude for that outcome as I could. The, the results of magical power was that I got a parking space right at the door. I then run into two friends, one friend I hadn't seen for a long time, and we got together for lunch after shopping. The second friend I ran into told me about an amazing, inexpensive house cleaner, which was something I had been dreaming of having. As I did my supermarket shopping, whenever I looked, what I needed was magically in front of my eyes. Everything was in stock on the shelves. One item after another was on special. And as I approached the checkout after doing my shopping in record time, a new aisle opened, and the checkout person signaled me to them. As the checkout person was putting my items through the register, out of the blue, she asked, "Do you need any batteries?" It was the one item I had forgotten to buy. My trip to supermarket was beyond easy and joyful. It was downright magical. तो ये यहाँ पे अपना एक एक्सपीरियंस बता रही है कि पहले वो उसको सुपरमार्केट जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, और उस दिन उन्होंने जब ये लिखा, जब ग्रेटिट्यूड का मैजिकल पावर लिख दिया, उन्होंने पहले से क्या लिखा कि थैंक यू फॉर द जॉयफुल एंड इजी ट्रिप टू द सुपरमार्केट। तो ये लिखने के बाद क्या हुआ, जब वो सुपरमार्केट गई, उनको उनकी दो सहेलियां मिल गई जो पहले से बहुत टाइम से वो मिली नहीं थी। एक के साथ उन्होंने उसके बाद लंच किया, और एक ने उन्होंने बहुत ही अच्छे इनएक्सपेंसिव हाउसमेड का कुछ नंबर दिया जो वो बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। सुपरमार्केट के अंदर भी क्या हुआ कि पूरे शेल्फ में ऐसी ऐसी चीजें उसको मिल गई एकदम इजीली, जो वो ऑलरेडी लुक कर रही थी। ये मेरे साथ तो बहुत बार होता है। मैं हमेशा सुपरमार्केट जब भी जाती हूँ, इतना अच्छा फील करके, मस्त ग्रेटिट्यूड करके एंटर होती हूँ। चीजें अपने आप इतनी इजी होती है मेरे लिए कि क्या बताऊं। यानी ऐसा नहीं था कि मुझे सुपरमार्केट जाना पसंद नहीं था, पर अभी ऐसा हो गया कि ये करने के बाद मेरी सुपरमार्केट का जो मेरी ट्रिप होती है, मैं जितने टाइम में सोचती हूँ कि मैं इतने टाइम में निकल जाऊंगी, वो भी हो जाता है। और मुझे जो जो चीजें चाहिए होती है, क्या तो मुझे डिस्काउंट पे मिलती होती है, या तो एकदम फ्रेश होती है। मेरा क्राइटेरिया होता है कि मुझे फ्रेश चीजें चाहिए, तो एकदम फ्रेश और अच्छी चीजें मुझे मिल जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये आप ये भी कर सकते हो। उसकी इन्होंने अपनी अच्छी वाली एक पूरी शेयरिंग की कि कैसे उनकी सुपरमार्केट की ट्रिप जॉयफुल हो गई, और इट वाज डाउन राइट मैजिकल। आपको लगेगा कि लाइक यू आर द क्वीन एंड क्वीन ऑफ द टाउन। कभी कभी आपके साथ ऐसी भी चीजें होती है। इन्होंने बोला कि एक एक आयल ही पहले ओपन था, दूसरा आयल उनके लिए ओपन हो गया उस टाइम पे। यानी जो बिलिंग काउंटर्स होते हैं, एक ही पहले बिलिंग काउंटर था, दूसरा इनके लिए। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि एक काउंटर पे इतनी सारी लंबी लाइन लगी होती है, और दूसरा काउंटर में जाती हूँ और ओपन हो जाता है, तो मेरा काम फटाफट फटाफट हो जाता है। मैं ऐसे ही कुछ भी बोल नहीं रही हूँ, सीरियसली मेरे साथ ऐसा होता है, और कई बार हुआ है मेरे साथ। तो आपके साथ भी ये हो सकता है जब आप ये मैजिकल पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड यूज करना चालू करते हो। शुक्राना हर एक चीज में अब जब डाल देते हो, सीरियसली ऐसी ऐसी मैजिकल चीजें होने लगती है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आपको लगता है कि वो जो मैजिकल जो आपकी सुप्रीम पावर है, वो हमेशा आपके साथ है, और आपको सभी चीजों में गाइड भी कर रहे हैं, और सभी चीजों में आपकी मदद कर रहे हैं। ओके, लेट्स रीड फर्दर। Just a minute. To have a magical day, just No, it it takes only takes. only few minutes. Yeah.
It takes only few minutes in morning to use gratitude to have a magical day by giving thanks for the events in your day ahead of time. But this one practice alone will change the way your entire day unfolds. To have a magical day when you wake up to the new day, either before you get out of bed or while you are showering or getting dressed, think about your plans for the day and give thanks for each one going brilliantly well. Make sure you do this magical practice at the beginning of your day and in one session. In your mind, in your mind, work your way through the plans you have for the morning, afternoon, and evening until bedtime. With each plan or event, say the magical words and imagine that you are saying thank you at the end of the day and you are immensely grateful because it did go brilliantly well. तो आप अपने आप को ये भी इमेजिन कर सकते हो कि रात को सोने सोने टाइम पे ऑलरेडी, यानी अभी आप इमेजिन कर रहे हो कि आज रात को जब आप सोओगे तो आप बोलते होगे कि वाह मेरा दिन कितना अच्छा था, थैंक यू गॉड। और जो भी चीजें आपने प्लान की थी अपने दिन में वो इतने अच्छे से वो हो गई, सब चीजें वो अभी आप फील कर रहे हो, वो अभी आप इमेजिन करके उसके लिए थैंक्स दे रहे हो। ओके, सो ये आपको समझना है। जब आप मतलब जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो उसके बाद एक के बाद एक चीजें अपने माइंड में भी सोच सकते हो। अगर लिखना नहीं है तो मैं लिख देती हूँ। अगर आपको लिखना नहीं है तो जब आप शावर ले रहे हो, गेटिंग ड्रेस हो रहे, मतलब ड्रेस कर रहे हो, मतलब कपड़े पहन रहे हो, तब भी आप पूरे दिन के लिए प्लान कर सकते हो अपना डे, और उसके लिए अच्छा गया उसके लिए पहले से ही थैंक्स बोल सकते हो। ओके, लेट्स इट फॉर You can You can use as many superlatives as you like to help you feel more grateful. Thank you for the incredible successful meeting. Thank you for the amazing outcome with the phone call. Thank you for one of the best day ever at work. Thank you for the thrilling sports game. Thank you for the effortless and fun day of cleaning. Thank you for the great night out with our friends. Thank you for the relaxing day to travel. Thank you for the amazing energy for exercise sessions. Thank you for the best family get together we have ever had. हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने कितने अच्छे अच्छे जरा वर्ड्स भी ऐसे पावरफुल यूज कर लिए कि अमेजिंग आउटकम, इनक्रेडिबली सक्सेसफुल मीटिंग। तो ऐसे ऐसे सुपरलेटिव्स यूज करने से आपको बहुत पावर मिलता है। मैंने भी ये बहुत ही मतलब एक एक हैबिट बना ली है कि हमेशा कुछ भी बोलना है तो ये अच्छे वाले वर्ड्स ही यूज करने हैं कि एफर्टलेस एंड फन क्लीनिंग, यानी रिलैक्सिंग डे ऑफ ट्रैवल, अमेजिंग एनर्जी फ्रॉम एक्सरसाइज। तो ये सब जब आप स्टार्ट करते हो ये सब वर्ड्स को यूज करना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ऐसा फील करने के लिए कि आपका अमेजिंग ही था डे। तो ये फीलिंग्स के लिए वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। तो आप कैसे वर्ड्स यूज करते हैं, आप अपनी मातृभाषा में भी ये वर्ड्स यूज करते हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि मेरा दिन बहुत ही अच्छा था, उसको और हिंदी में क्या बोल सकते हो कि लाइक मुझे सीरियसली हिंदी में इतने सारे वर्ड्स नहीं आते हैं, पर आप हिंदी में भी इसमें जान डाल सकते हो ये सब चीजों में अगर आप यूज कर रहे हो तो। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। Yes. The magical practice is more powerful in you. Sorry, this magical practice is more powerful if you can say the magic words thank you out loud for each experience. But if you are not in a position to say them out loud, then it is fine to say them in your mind. After you have finished using gratitude's magical power for every task and event in your day, end the practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. Without fail, every single morning when I finish using gratitude to have a magical day, I give thanks for the great news coming to me that day. As a result, I have never received so much great news in my entire life.
One week after another, one day after another, great news pour in. Each time I receive another piece of great news, I am especially grateful and excited because I know I used gratitude's magical power to bring it. And then even more great news continue to come in. If you want to receive more great news than you ever have before, then just follow it my footsteps in हाँ, my तो ये footsteps. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं रमजा बर्न कि आप ये मैजिकल एक तो ये टू डू लिस्ट बना रहे हो, जो भी है आप अगर मन में बोलना चाहते तो मन में बोल रहे हो, बराबर। और ये पूरा आप इमेजिन कर रहे हो कि हाँ हाँ ये ऐसी ऐसी चीजें हो गई है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आपने ये पूरा बोल दिया अपने माइंड में, पूरे इवेंट अपने प्रैक्टिस कर लिए पूरे दिन का जो थैंक यू जो भी है, उसके बाद ये एक और चीज आपको बोलनी है। क्या बोलनी है? थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे। ये रोज आपको याद रखना पड़ेगा बोलने के लिए। और ये यहाँ पे अपना खुद का जो बता रही है कि जब भी ये बोलते थे उनके लाइफ में इतने सारे गुड न्यूज पोर्स इन होते थे, लाइक भर भर के गुड न्यूज आते थे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज है करने के लिए, जो आपको प्रैक्टिस में लाना है। और ये अपने बोल रही है कि इफ यू वांट टू रिसीव मोर ग्रेट न्यूज देन यू एवर हैव बिफोर, देन जस्ट फॉलो इन माय फुटस्टेप्स। उनके फुटस्टेप्स में हमें फॉलो करना है। ओके, सो मैजिक प्रैक्टिस नंबर 14। Have a magical day. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful as that blessings as you can. Second, in the morning, work your way in your mind through the plans you have for the day and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic word thank you for it having gone well. Imagine that you are saying thank you at the end of the day and you are immensely grateful because it went perfectly. Third, after you have finished being grateful for all the plans in your day going brilliantly well, end this magical practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. Fourth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Okay, so did you all understand this practice? Yes. Yes. Okay, perfect. Okay, so let's move on to our power book. So कल हमने कहाँ तक, यहाँ तक पढ़ा था, to drain you of more money. Okay. So कल हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास enough money नहीं होता है तो naturally we don't feel good about money. But the money in your life will never change while you don't feel good about it. तो ये जब हमने पढ़ा था कि कभी भी हम अगर मनी के लिए अच्छा सोचते नहीं है, अगर गुड फीलिंग्स नहीं है, तो हम वो सर्कल में चलते ही रहेंगे। कैसा सर्कल? जिसमें हम और अच्छा फील नहीं कर रहे, ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे, वापस हम अच्छा नहीं फील कर रहे, और वो साइकिल चलता रहता है मनी के बारे में। तो अभी अगर आपको अपना मनी का ये जो पोजीशन है, जो भी अभी सिचुएशन है, अगर आपको ये करनी है, चेंज करनी है, तो एक तो हमने इसमें मैजिक बुक में पढ़ा, उस तरह से आप सब पूरे ही बिल्स के ऊपर लिख देते हो थैंक यू पहले से ही, कि पे हो गया है तो उसके लिए लिखते हो, या तो पहले से थैंक यू फॉर द मनी लिख देते हो। तो सेम वे आपको ये सब चीजें करनी पड़ेगी, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, सो दैट यू कैन फील गुड अबाउट मनी। तो मनी के लिए अच्छा फील करने के लिए ये भी एक प्रैक्टिस होती है कि आप थोड़ा यानी एक अपना स्ट्रक्चर बना ले, और उसके हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा पैसे देना भी चालू करें लोगों को, जो नीडी पीपल है। और ऐसा ही नहीं कि नीडी, किसी के लिए भी खर्चा करते हो, कोई और मान लो आपके घर में कोई है, आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उनके लिए भी खर्चा करते टाइम पे आपको जो अभी हमारी सोच होती है कि हम 2-3 बार सोचते हैं
तो वो भी धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना है कि आप इजीली वो सब चीजें कर पाओ। ये बहुत ही जरूरी है आपका मनी का इनफ्लो बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम सोच सोच के करेंगे कि हाँ मुझे मनी चाहिए इसलिए, पर बिकॉज ऑफ योर गुड हार्ट यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। और जैसे करते हो तो वो वैसे भी आ ही जाती है प्रैक्टिस में, कि आप किसी को भी देते हो तब 4-5 और दुआएं मिला के उनको देते हो, बहुत ही अच्छी फीलिंग्स के साथ देते हो कि हाँ जिनको भी मैं दे रही हूँ उनका भला हो। अगर मान लो फैमिली में कोई किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो उनके उनके साथ भी एक अच्छा सा फीलिंग्स अटैच कर लो कि जिनको भी आप दे रहे हो उनका बहुत ही अच्छा हो, प्रोस्पेरिटी आए उनके घर में, खुशियां फैल जाए उनके घर में, जो भी अच्छी चीजें है वो उनके घर में आए। तो ऐसी फीलिंग्स के साथ जब आप देते हो आप वैसे ही अच्छा फील करने लगते हो मनी के बारे में। और जैसे ही आप व्हेन यू गुड फील अबाउट मनी यू आर ऑलरेडी अट्रैक्टिंग इट इनटू योर लाइफ बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बट ये पहले आपको करना पड़ेगा और इसमें थोड़े एफर्ट्स लगेंगे इनिशियली। जब ये आपका सेकंड नेचर हो जाएगा फिर तो कोई एफर्ट्स नहीं है। ओके, सो Amina, let's read from here every single second. Sure. Every single second is an opportunity to change your life, because in any moment you can change the way you feel. It doesn't matter what you have felt before. It doesn't matter what mistakes you think you may have made. When you change the way you feel, you are on different frequency, and the law of attraction responds in, instantaneously Instantaneously. instantaneously. When you change the way you feel, the past has gone. When you change the way you feel, your life changes. तो अभी पास्ट को भूल जाना है, जो भी पास्ट की चीजें आती है हमें इतना याद रखना है कि हमें तो बस गुड फ्रीक्वेंसी में जाना है कुछ भी करके। और कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे दिन आते हैं कि जहाँ पे आपको थोड़े ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं अच्छा फील करने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें होती है जो पास्ट में से आके खड़ी होती है, हम रिएक्शन भी कर लेते हैं, बहुत सारा ऐसा भी होता है। कोई बात नहीं, यू जस्ट स्टे विद द प्रोसेस। जो भी है थोड़े से अपने खुद के एफर्ट्स डाल दीजिए। अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है तो अच्छा फील करने के लिए अच्छा म्यूजिक सुन लीजिए, मैजिक स्टेप्स कर लीजिए, कुछ नेचर में जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लीजिए। अगर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, बच्चों के साथ ऐसी कोई गेम खेल लीजिए जो आप बचपन में खेलते थे। कोई भी अच्छी चीजें वो करके इंस्टेंटेनियसली आपको ये अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। बस आपको इतना समझना है कि आई हैव टू फील गुड नो मैटर व्हाट। ओके, सो यहाँ पे जो नेविल गुडार्ड ने बोला है कि डू नॉट वेस्ट वन मोमेंट इन रिग्रेट, फॉर टू थिंक फीलिंगली ऑफ द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट इज टू री इन्फेक्ट योरसेल्फ। इन्होंने ये बहुत ही डीप यहाँ पे बात बोली है। क्या बोला है कि अगर आप रिग्रेट में रहते हो पास्ट को लेके, कुछ ना कुछ अपने माइंड में पास्ट को घुमाते रहते हो, कुछ मिस्टेक्स है जो पास्ट की आप लाते रहते हो, तो आप क्या कर रहे हो, अपने माइंड को री इन्फेक्ट कर रहे हो। री इन्फेक्ट का मतलब क्या है, वो चीज आपके माइंड में आप उसको पनपने दे रहे हो, बहुत ही उसको यानी बुरी तरह से पनपने दे रहे हो। तो आपको अभी ये ध्यान रखना है कि जो भी कोई मिस्टेक थी अपने आप को माफ करो। पास्ट में जो भी हुआ वो अभी पास्ट में हो गया, उसको आप जाके बदल भी नहीं सकते हो, कोई बात नहीं। अभी आपके हाथ में क्या है, अभी आप क्या फील कर रहे हो, वो ये आपके हाथ में है। तो आपको ये चेंज करना है कि आप कैसा फील कर रहे हो इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। No No excuse. excuse for the force of love. If your life is not filled with everything you love, it doesn't mean you are not a good and loving person. The life purpose for each of us is to overcome negativity by choosing love. The problem is that most people love and then stop loving hundreds of times in a day. They don't give love long enough for the force of love to move all the good things into their life. Think about it.
One moment you give love through a warm hug with a loved ones, and then you stop giving love within the minutes when you get annoyed because you can't find your keys, you are delayed in traffic, or you can't find a parking space. You give love when you laugh with a work colleague and then stop when you get disappointed because a local lunch place has run out of something you want. You give love as you look forward to the weekend, and then you stop when you are receive your bills. And so it continues all through the day. You give love and you stop giving love. Give love and stop giving love. Give love and stop giving love from one moment to the next. तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से एकदम बारीकी से समझाया है। कभी क्या होता है कि कोई मोमेंट में हम लव देते हैं, अच्छा फील करते हैं, कुछ भी गलत होता है, हम बुरा फील करने लगते हैं। लंच में हमें जो चाहिए था वो नहीं खाने को मिला, मेन्यू में वहां पे नहीं था, हमने अच्छा वो लव देना स्टॉप कर दिया। लव देना स्टॉप कैसे किसको कहते हैं कि जब हम बुरा फील करने लगते हैं, कुछ भी चीज को लेके एनोय हो जाते हैं, कुछ भी चीज को लेके गलत तरीके से रिएक्शन करने लग जाते हैं, तो ये सब चीजें क्या है? नॉट गिविंग लव। वी स्टॉप गिविंग लव एक्चुअली। तो हम ये सभी प्रैक्टिस इससे अभी क्या कर रहे हैं, अपनी नेगेटिव, यहाँ पे इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोल दी थी कि लाइफ पर्पस फॉर ईच वन ऑफ अस इज टू ओवरकम नेगेटिविटी बाय चूजिंग लव। हमें चूज करना है लव को बाय ओवरकमिंग ऑल अवर नेगेटिविटी। चलो वहां पे लंच में ये मेन्यू नहीं मिला, कोई बात नहीं, चलो कहीं और जाके मैं देखती हूँ, या लेट मी ट्राई समथिंग न्यू टुडे। तो ये एक अपनी एक एटीट्यूड, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो आप कल्टीवेट कर सकते हो। ये अपने हाथ में है, ये चूज करना आपके हाथ में है। अगर आपकी कीज खो गई है, उस टाइम पे नहीं मिल रही है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और टाइम लगा के ढूंढती हूँ, मिल जाएगी, इसमें क्या नई चीज है। तो ऐसे ही तुरंत ही आपको नेगेटिविटी में से कैसे पॉजिटिविटी में जाना है, ये आपके हाथ में है। इसीलिए आपको अवेयर होना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा पूरे दिन में, कहाँ पे व्हेन यू स्टार्ट गिविंग लव एंड यू स्टॉप गिविंग लव, यू गिव लव एंड यू स्टॉप गिविंग लव। तो ये आपको पूरे दिन में अपने आप को ऑब्जर्व करते रहना है कि कहाँ पे क्या चीज हो रही है। तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस लगती है, एफर्ट्स लगते हैं, पर फिर ये एफर्टलेस हो जाएगा जब वंस यू आर बीइंग अ पर्सन हु इज ऑलवेज पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग इन योर लाइफ। ओके, सो ये बस ये गौतम बुद्धा तक रीड करते हैं, फिर हम अपना हार्ट थॉट ले लेंगे। Sure. You are either giving love and harnessing the force of love, or you are not. You can't harness the force of love with an excuse about why you didn't love. Excuses and justifying why you didn't love just add more negativity to your life. When you give an excuse as to why you didn't love, you are feeling the same negativity again, and so you are giving out more of it. तो Holding on. नॉट गिविंग लव के लिए भी हम एक्सक्यूज देते रहते हैं कि यार देखना ऐसा हो गया मेरे साथ, या यू नो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज आते रहते हैं, हम अपने आप को भी जस्टिफाई करते ही रहते हैं। वो एक हमारा ईगो है, हम जिसको जस्टिफाई करते रहते हैं पूरे दिन में। तो और क्या करेगा वो, और एक नेगेटिविटी को ऐड करेगा आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे क्या एक्चुअली समझाना चाह रहे हैं कि अगर कोई चीज आई भी है तो कोई बात नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले और उसके चीज के साथ आगे बढ़े कि चलो ये आया है। जैसे कोई चीज आगे हम बात कर रहे थे, कुछ चीज आती है तो हमें कुछ ना कुछ सिखाने को आती है, कुछ ना कुछ रीजन से आती है। तो जब हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, तब हम ब्लेमिंग गेम भी छोड़ देते हैं, उसका विक्टिम बनना भी छोड़ देते हैं, उसको जस्टिफाई करना भी छोड़ देते हैं, और समझ लेते कि हाँ जो भी है ऐसा है, और एक्सेप्ट कर लेते एट द एंड। तो एक्सेप्टेंस भी जो होता है वो बहुत ही बड़ा एक गिविंग लव का फॉर्म होता है। जब भी आप कोई चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो,
उसका मतलब ही है कि आपने उसको लव देना चालू कर दिया। तो ये समझने का बहुत जरूरी है, आपके ही हाथ में है। आप इफ यू वांट टू हार्नेस द फोर्स ऑफ लव और इफ यू डोंट वांट टू हार्नेस, इफ यू वांट टू गिव एक्सक्यूजेस और मे बी जस्टिफाई योर नेगेटिव थिंकिंग, I mean there is no way out. You can do it but there is no way out. अभी वही सर्कल में आप घूमते रहोगे जो नेगेटिविटी का सर्कल है। तो यहाँ पे गौतम बुद्धा ने, जो फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म है, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त बात बोली है कि होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ग्रास्पिंग अ hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one getting burned. आपने आपके हाथ में ले लिया एक कोयले का टुकड़ा जो बहुत हॉट है, आपको लगा कि मैं किसी और पे फेंकती हूँ क्योंकि उसने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, मुझे हर्ट किया, मेरे साथ धोखा दिया, जो भी है उसको फेंकने के लिए आपने हाथ में लिया है, पर एक्चुअल में तो आप ही बर्न हो रहे हो, आप ही जल रहे हो उसकी वजह से। तो ये एक बहुत ही डीप वाला, ये जो गौतम बुद्धा का जो सेंटेंस है बहुत ही डीप है कि आपको किसी के ऊपर अगर एंगर है, वो आपको ही जलाएगा, वो आपको ही नेगेटिविटी में लेके जाएगा। सामने वाले का उसके साथ कोई लेना देना नहीं, उसके कर्म उसके साथ है, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। आपके कर्म आपके साथ है, तो आपको वो पर्सन को माफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप माफ करते हो तभी आप आगे बढ़ पाओगे लाइफ में। इसीलिए अगर आप सोचते हो कि नहीं, इसने साथ मेरा बुरा किया तो मैं तो उसके साथ भी बुरा करके ही छोड़ूंगा, कुछ भी नहीं होगा। आप उल्टा अपने आप को ही कुछ ना कुछ नेगेटिविटी में आप लेके आओगे और आपका बहुत ही बड़ा नुकसान होगा उसके अंदर। इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि आप जो भी कर रहे हो, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, लोगों को माफ करके आगे बढ़ना सीखो। पास्ट में से भी कुछ अगर ऐसा याद आता है जो हर्ट करता है, उसके लिए भी माफी मांग लो। ये दाता बहुत बड़े हैं, सुप्रीम पावर बहुत बड़े, आपको आराम से इजीली माफ कर देंगे। इसीलिए आगे बढ़ो और ये अपने आप को भी माफ करते जाओ और सबको भी माफ करते जाओ। ओके, सो let's go to our power thought, heart thought for today. Okay, let me see actually. heart thought मुझे शायद ओपन करना पड़ेगा। Oh, it's already. Okay, so कल हमने जो हार्ट थॉट किया था, आई एम अ हार्मोनियस बीइंग, तो आज जो हमारा हार्ट थॉट है कि आई एम सेंटर्ड इन ट्रूथ एंड पीस। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू ऑल। Okay, search your heart for injustices that you still harbor, forgive them and let them go. So यहाँ पे लुइस है भी हमें बार बार ये सिखा रही है कि जो भी आपके हार्ट के अंदर जो भी इंजरीज है पास्ट में से, आप उसको ढूंढो, उसको फॉरगिव करो और लेट देम गो। अगर आप उसको होल्ड ऑन टू करते हो तो आपको ही वो जला रही है अंदर से, आपको ही वो कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा रही है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि आप ये सभी चीजों को लेट गो करो और आगे बढ़ो। I'm centered in truth and peace. No matter where I am, there is only Spirit, God, infinite good, infinite wisdom, infinite harmony and love. It cannot be otherwise. There is no duality. Therefore, right here and right now in my workplace,
I declare and affirm that there is only infinite harmony, wisdom and love. तो यहाँ पे जैसे वो पूरी अर्थ की बात करी, पूरी हमारे प्लैनेट की बात करी है कि ये दिस इज अ गॉड्स बिजनेस, और ये ऑफिस में मैं डिक्लेयर कर रही हूँ आज, या एफर्म कर रही हूँ कि ओनली इन्फिनिट हार्मनी, विजडम एंड लव है यहाँ पे, और कुछ नहीं है. There are no problems that do not have solutions. There are no questions without answers. I now choose to go beyond the problem to seek the divine right action, solution to any discord that may seem to appear in the true harmonious atmosphere of this business. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कोई चीज नहीं जिसका कोई आंसर नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है. और मैं क्या कर रही हूँ आज, टुडे आई चूज टू गो बियॉन्ड द प्रॉब्लम के बियॉन्ड जाके मैं क्या चूज कर रही हूँ, टू सीक द डिवाइन राइट एक्शन. मैं डिवाइन पे छोड़ रही हूँ कि जो भी वो एक्शन लेंगे मेरे हित में ही होगा, और कोई भी जो डिस्कॉर्ड अभी हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो भी ऐसी कोई चीजें अपीयर हो रही है जो मुझे नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं, मैं अपने डिवाइन राइट को, एक्शन को के ऊपर छोड़ रही हूँ. और मुझे पता है कि हार्मनी यहाँ पे ऑलवेज प्रिवेल करती है ये बिजनेस में. कौन से बिजनेस में? जो ये हमारा लाइफ है, हमारी जो लाइफ है एक बिजनेस है, डिवाइन बिजनेस. उस लाइफ में जो भी मैं चूज करती हूँ वैसे ही होता है. We are willing to learn and grow from this seeming discord and confusion. We release all blame and turn within to seek the truth. We are also willing to release whatever pattern that may be in our consciousness which has contributed to this situation. We choose to know the truth and the truth set us free. तो अभी हमें क्या करना है कि हमें ये जानना है कि अगर कोई चीज हमारे साथ हो रही है तो उसके पीछे भी कोई रीजन है, और हमने कैसे ये सिचुएशन में कंट्रीब्यूट किया है. हमें वो जब ट्रूथ पता चल जाता है तब अपने आप को फ्री कर देते हैं. बिकॉज नाउ डिवाइन विजडम, डिवाइन हार्मनी एंड डिवाइन लव reigns supreme within me and around me and within and around each and every person in this office. जब हम कुछ भी प्रेयर्स भी करते हैं, डिवाइन विजडम, डिवाइन हार्मनी, डिवाइन लव, तो मेरे अंदर तो वो है ही, पर सबके अंदर है जो भी ये बिजनेस में है. तो इट डजंट मैटर कौन से लोग कैसे है कैसे नहीं है, पर हम सब एक ही चीज में से, एक ही सोर्स में से आए हैं. और ये जो डिवाइन विजडम, डिवाइन हार्मनी, डिवाइन लव जो भी है, वो सभी लोगों के अंदर है, सभी के लोगों के अंदर और अराउंड है. तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है. इसी वजह से आप किसी के लिए कंपैशन और काइंडनेस फील कर पाओगे, अपने खुद के लिए भी और सबके लिए भी. तो ये जो भी इन्होंने, ये पूरा पैराग्राफ ही एक तरह का एफर्मेशन है. आप वापस उसको पढ़ना और इसको थोड़ा और सिंक इन करने देना कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं. This business is God's business and God is now directing, leading and guiding our movements. I declare for myself and for each and every person in this business peace, security, harmony and deep sense of love for the self and the joyous willingness to love others. We are centered in truth and live in joy. So this is the whole thing, is a God's business, and we all wish each other peace, harmony, love, excuse me, and security. हम सभी के लिए, अपने खुद के लिए और सभी के लिए हम हमेशा यही दुआ करते हैं कि पीस हो सबकी लाइफ में, हार्मनी हो. आप ही सोचो कि पूरे प्लानेट पे अगर ये अच्छी अच्छी वाली चीजें फैल जाए, पीस है, हार्मनी, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को अच्छा बोलना, एक दूसरे को एनकरेज करना, एक दूसरे के लिए अच्छा विश करना, तो सोचो कितनी अच्छी लाइफ होगी, कितनी जबरदस्त लाइफ होगी सबकी, हमारी और सबकी. मतलब अगर किसी को कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम आ भी रहा है तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं कि अरे कोई बात नहीं, तू क्यों चिंता करता है, अपन है ना साथ में.
और ये डिवाइन है हमारे साथ में ऑलवेज। तो ये अब जब आप समझ जाते हो तो आप सभी लोगों को एक अलग ही कंपैशन की नजर से देखने लगते हो। ये कंपैशन का भी ट्रू मीनिंग क्या है? अगर पहले मैं अपनी खुद की बात बताती हूँ। बहुत टाइम के पहले मैं कंपैशन को क्या समझती थी कि जब किसी नीडी पर्सन को या किसी ऐसे पर्सन को देख ले जो डिसेबल्ड है या कोई गरीब है जिनके पास पैसे नहीं है, तो मैं समझती थी इसको कंपैशन कहते हैं कि इसके तरफ अच्छी एक लागनी दिखाना, मतलब एक अच्छी फीलिंग्स दिखाना, उनको मे बी पैसे की हेल्प करना या कुछ भी, अगर कोई हेल्प कर सकते तो हेल्प करना। पर कंपैशन एक्चुअली वो नहीं है। कंपैशन तो एक छोटी छोटी चीजों में है। अगर मैं अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मुझे मेरे सामने आमिना दिख रही है यहाँ पे या रेखा जी है, तो उनके साथ मेरा कंपैशन का मतलब क्या हुआ कि उनको मैं ऐसे एक्सेप्ट कर रही हूँ, वो जैसी भी है, वो जैसे भी है। मुझे पता है कि हम सभी लोगों के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी पॉजिटिविटी भरी हुई है। हम सभी की अलग अलग एक्सपीरियंसेस है। हम सभी ने वो एक्सपीरियंसेस में अलग अलग तरीके से सीखा है। तो यहाँ पे हम क्या करें, ये कंपैशन है। जब मैं आमिना के शूज में अपने आप को रख के देखती हूँ कि हाँ वो भी कुछ किसी ऐसी चीजों में से गुजरी होंगी जो मैंने नहीं एक्चुअली एक्सपीरियंस की है, पर मैं समझ सकती हूँ कि वो किस चीजों के थ्रू गई होगी, जिसकी वजह से वो जो भी है अभी उसको, अगर वो स्ट्रगल कर रही है, अगर अच्छी लाइफ है तो वो भी मैं समझ सकती हूँ। तो ये सब चीजें हैं, इसको कंपैशन एग्जैक्टली बोलते हैं कि आप अगर सामने वाले को जज नहीं कर रहे हो, उसकी कोई एक्शन से उसको जज नहीं कर रहे हो, आपको तो अंदर से पता है कि हाँ वो डिवाइन है, अंदर से वो एक डिवाइन सोल है, और उसको आप उसकी नजरिए से हमेशा देख रहे हो, ना कि उसकी वजह से कि क्या उसका एक्ट है, अभी उसका बिहेवियर क्या है। एग्जैक्टली कंपैशन इसको बोलते हैं कि आपके एक एक ह्यूमन बीइंग्स के साथ आप जब उनको जब भी आप देखते हो, उनको बिना जज किए आप उसके कंपैशन की नजर से देखते हो कि अगर ये बंदे ने या ये बंदी ने ये अगर कुछ भी किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। इसको एग्जैक्टली कंपैशन बोलते हैं। नहीं कि जब आप किसी नीडी को देख के उसको मदद करते, उसको कंपैशन नहीं बोलते। कंपैशन हर एक चीजों में बसा हुआ है, हर एक के साथ। अगर आपका बच्चे को आप कंपैशन की नजर से देखते हो, मतलब देखते हो कि हाँ उसको ये चीज, अगर वो ऐसे बिहेवियर या रिएक्ट कर रहा है, कहीं ना किसी रीजन की वजह से वो कर रहा है। आमीना, आपको कोई क्वेश्चन है? Yeah, so you mean compassion is to accept one, he or Exactly. she, the way he or she is. Yes. Regardless of what she or he acts. अगर मान लो आपका स्पाउस है, अगर उसको कोई बात पे गुस्सा आ रहा है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, अगर आपको ये कोई इसके बात पे गुस्सा आ रहा है, कंपैशन क्या बोलोगे, किसको बोलोगे आप? कि वो जैसे भी है वो मोमेंट में आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप समझ पा रहे हो डीपली कि क्या रीजन है उसके बिहाइंड। अगर वो गुस्सा कर रहे हैं तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। एक तो पूरा उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जिस तरह से उन्होंने पूरी अपनी हैबिट्स बिल्ड की होगी, जिस तरह से वो रहे हैं, उनके खुद के एक्सपीरियंस, जो डिवाइन भी उनको जो एक्सपीरियंसेस देते कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। या तो कोई कोई लोग सीख के आगे बढ़ते, कोई कोई लोग नहीं सीख पाते हैं, या उनको और और मतलब एक्सपीरियंस चाहिए होंगे सीखने के लिए, जो भी है। कंपेशन किसको बोलेंगे कि आप वो एक्सेप्ट करो कि हाँ अगर ये गुस्सा कर रहा है अभी इस टाइम पे, कुछ ना कुछ रीजन है उसके पीछे। आप पूरी तरह से वो जैसा भी है उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, इसको ही कंपेशन बोलेंगे। कंपेशन इज के आप किसी को देख के उसको पूरी तरह से उसको समझ रहे हो कि चलो कोई बात नहीं, अगर ये ऐसा कर रहा है तो मेरे हाथ में तो है कि मैं क्या फील कर रही हूँ।
यानी अगर कोई आपके ऊपर गुस्सा करता है, आप अपने आप के ऊपर भी कभी कभी जब ब्लेम लेने लगते हो, तो अभी आपको ये भी समझ में आएगा कि ये तो उसका खुद का है, उसका खुद का पर्सपेक्टिव है, उसकी खुद की लाइफ है, उसकी खुद की लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, इट हैज नथिंग टू डू विथ मी। अगर मान लो वो आपको ब्लेम भी उस टाइम पे कर रहे हैं, तो आपके ऊपर है आपको वो ब्लेम लेना है कि नहीं। यहाँ पे भी कंपैशन एक्चुअली काम कर रहा है। यहाँ पे आप आपकी खुद की तरफ भी कंपैशन फील कर रहे हो कि नहीं, वो तो उनका जो भी है पर्सपेक्टिव है, ओपिनियन है, जो भी है उनके उनके तरह से है, उनकी तरफ से है, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से। इट हैज नथिंग टू डू विथ मी। मैं अपने ऊपर ब्लेम क्यों लूं? वैसे ही जैसे जैसे आप अपने खुद के ऊपर भी कंपैशन से अपने खुद को भी एक्सेप्ट करते जाते हो, तो ये चीजें आपको मोर डीपली आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, एक बड़ा पिक्चर देख पाओगे। अभी हम क्या करते हैं, रिएक्शन कर देते हैं, क्योंकि हम बड़ा पिक्चर नहीं देखते हैं। वी आर नॉट सीइंग द बिगर पिक्चर, बट व्हेन वी स्टार्ट सीइंग द बिगर पिक्चर, we start to accept things, and that is called compassion। कि जो भी है, जैसा भी है, कोई मानस, अगर कोई पर्सन है, कोई एक्ट कर भी रहा है किसी वजह से, आप उसको बिना जज किए आप उसको समझ सकते हो। दैट इज कॉल्ड कंपैशन। ओके, सो व्हाट टाइम इज इट? एक्चुअली आई हैव अ जॉब टुडे, so if you want I can put a guided meditation जो आप कर सकते हो। ये मैं आज ये हो ओपोनोपोनो का सेल्फ लव और रेडिकल फॉरगिवनेस है वो रखती हूँ। तो आप मेडिटेशन चालू करो और Welcome to Forgiving Yourself, by then I will a get ready guided meditation using the for my Hawaiian job. Ho'oponopono prayer. My name is Sandra, and I am a timeline trauma release facilitator and teacher trainer based in Sedona, Arizona. During today's session, Can you all I will hear guide you this? through the meditation with the intention to remove resentment, blame, Yes, we and can hear. Very clearly, not very clearly. free yourself Oh. and Not very all others clearly. involved from any negative energy. Okay, let me see. Clarity is lacking, like Okay. sounds recorded kind of. Maybe because of her accent, so that's fine. Maybe I will put a Luke Coutinho's visualization meditation. That is really good. So let me see. Okay, yeah. With MailChimp's Creative Smarts, simply enter your website. Get beautiful designs drawn from your brand. Can you hear now? Yes. Okay. Sit comfortably with your back straight. You may sit on the floor cross-legged, or you may sit on a chair with your back straight. If you are in a wheelchair, put a small cushion to support your lower back, or just sit in a comfortable position. If you cannot sit or you cannot stand, that's okay. You may lie on your bed in a comfortable position. Palms on your lap, facing upwards. Your shoulders are gently relaxed. Your jaw is relaxed, and your chin tucked in gently towards your chest. Your tongue should be relaxed, not touching the roof of your mouth, but gently relaxed. Now gently close your eyes. Take a deep breath through your nostrils. Gently inhale, and through your nostrils, a long, slow exhale.
Let's do this again. Through your nostrils, a gentle inhale. And out through your nostrils, a long, slow exhale. Let's do it once again. Inhale through your nostrils, and out through your nostrils, a long, slow exhale. Keep your eyes gently closed. Now take a deep breath. Inhale through your nostrils and hold comfortably for 2, 3, or 4 seconds. And then slowly exhale out through your nostrils. Let's do this again. A slow, deep inhale through your nostrils. Hold gently for 2, 3, 4 seconds. And then slowly exhale out through your nostrils. Let's do this one more time. Inhale gently through your nostrils. Hold for 2, 3, or 4 seconds. And then slowly exhale out through your nostrils. Now with your eyes closed, continue breathing at your own pace. Inhale and exhale. And now listen. Listen to understand. Listen to feel. Do not listen to judge or overthink. Just listen. Remember, thoughts are part of meditation. Meditation is not about trying to stop your thoughts. Every time a thought pops into your head, just simply and gently let it go. Try not to buy into the story or the thought. Try not to run off with that thought. Just simply let it go and come back to your breath. That's all you have to do. Your mind may wander off every 2 to 3 seconds, and that's okay. But the more and more you practice this, the longer those gaps will get. So remember, thoughts are part of meditation. Do not try to stop your thoughts from coming. Now let go of any distractions, any outside distractions and sounds. Let them go. Take a deep inhale and a deep exhale. Now, I want you to visualize in your mind how you want your life to look and be. Your life. Forget about what's happening on the outside. Forget about what you watched in the news. Forget about what your friends are doing. Forget about what and how many lives you saw on social media today. I want you to visualize in your mind how you want your life to look and be. Dream without limits, but visualize how you want your life to look and be. How do you want your relationships to look? How do your relationships look right now? How do you feel in your relationships right now? What are some of the things you're doing? What are some of the things you're feeling? Now think about your partner. Visualize your relationship with your partner. How does that look? How do you feel? How do you want your relationship with your partner to be? Dream big. How do you want your relationship with your partner to be? Loving, full of care, full of respect, full of intimacy, filled with happiness, forgiveness, joy, and great health. Visualize how you want your relationship to be. And how will you feel when it's that way? How will you feel when your relationship is that way? Connect with that feeling deeply. Connect with that feeling. Take a deep breath in and a slow, long exhale out.
Now visualize your health. How does your health look and feel right now? Visualize how you want your health to be. You are fit. You are strong. You are happy. Your immunity is strong. Even if you fall sick, you recover quickly. You have so much energy. You are healing. You are getting stronger and healthier day by day. Your cells work in perfect harmony with one another. You are aging gracefully. Visualize that. And how will you feel when this all happens? How will you feel when you have that health? Connect deeply with that feeling. Connect deeply. Now visualize your home environment. How do you feel when you are in that home environment? How does your home environment look to you right now? Now visualize how you would want your home environment to be. Dream big. How would you want it to be? Full of togetherness, full of happiness, joy, forgiveness, love, fun, great health. Visualize this deeply. And how will you feel when this all happens? How will you feel? Connect deeply with that feeling. Connect deeply. If your mind wanders, just gently come back to your breath. It's absolutely okay. Now visualize your wealth and abundance. How do you feel? Now visualize how you would want wealth and abundance to be in your life. You can do what you want, when you want. You can travel. You can buy nice things. You can give back. You can help those who need help. You can save well. You can spend well. You can give the best to you and your loved ones. Visualize this deeply. And now, how will you feel when this happens? How will you feel? Connect deeply with that feeling. Connect deeply. Dream big, visualize big, and connect deeply with that feeling when you achieve what it is that you visualize. How it happens, when it happens, is not our concern. Our job is just to see it and feel like it's already happening. You may smile, you may feel shivers in your body. You may have tears of joy when you connect deeply with these feelings that you're visualizing. That's good for you. Connect deeply. Visualize and feel the feeling of the outcome. Take a deep breath. Slow inhale through your nostrils. And a slow exhale. Now visualize your career, your business. How do you feel? How does it make you feel? Now visualize how you want your career and your business to be. You are happy, you're growing, you're earning more, you're getting respect, you're getting cooperation, you're making time for your work-life balance. You are helping other people grow. You are happy with every part of your career and your business. You know you have the strength to get through the ups and the downs. Visualize this.
Visualize this deeply. And now, visualize how you will feel when this happens. How will you feel? Connect deeply with that feeling. Connect deeply. Now visualize yourself. You. Your personal growth, your journey. How does it feel? Now visualize how you want your life and your personal journey to be. You are filled with kindness, compassion, forgiveness. You're overcoming anger and irritability. You're complaining less, you're blaming less because it serves you no purpose. Okay, everyone. Sorry, I have to do this. I mean, it's already done. This meditation is already over, like 2-3 minutes remaining. So, okay, everyone. Thank you so much for joining Thank in. you. Thank you. Thank See you all tomorrow. Thank you. Thank you. Bye. Bye. And yeah, remember tomorrow is 6:45 a.m. एलिसिया, इसका YouTube का अगर लिंक होगा तो भेजना ना हाँ ग्रुप हाँ में। मैं भेज देती हूँ, अभी भेज देती हूँ। ठीक है, ओके, बाय हाँ, थैंक यू, बाय। बाय।